In the next 5 minutes, I'll show you how you can earn Ethereum daily, paid directly and instantly to your own Ethereum wallet, just like thousands of people around the world. Introducing the world's first 100% decentralized matrix project programmed on an Ethereum smart contract called Forsage, where 100% of the income goes directly and transparently to the members of the project with zero risk. Forsage's genius and lucrative matrix marketing plan was programmed on the Ethereum blockchain with revolutionary smart contract technology that executes the program automatically in a decentralized way, so no admins are needed to run the project. It's impossible for project creators or anyone to change the code and execution of the smart contract, and that is extremely powerful, as it ensures the project will keep running and there is zero risk or possibility of hacking into the smart contract or stopping the project. Unlike centralized cryptocurrency projects, the founders of Forsage never take or store members' cryptocurrency in any centralized location, so it's completely secure. 100% of all Ethereum payments are sent instantly and directly to the members of Forsage and stored in their personal Ethereum wallets, which they control the private keys. You can easily verify all of the transactions on the Ethereum blockchain as the project is fully transparent. Right now, over 2,000 people are joining the Forsage project worldwide every single day. With Forsage's decentralized project, you can get started with as little as 0.5 Ethereum, and the income potential is literally unlimited. You can earn even 1,000 Ethereum or more. Since February 2020, Forsage has helped thousands of people earn Ethereum, and some have earned hundreds of Ethereum in their first 3 to 8 weeks of getting started. Like the following Forsage members: ID 8679 earned 379 ETH, ID 8648 earned 301 ETH, ID 64 earned 466 ETH, ID 1 earned 843 ETH, ID 7977 earned 299 ETH, ID 113 earned 209 ETH. And by the time you check these IDs publicly on the blockchain, they will have earned even more Ethereum. Thanks to the powerful and lucrative Forsage Matrix spillover plan, it is possible to earn Ethereum even without referring anyone to the project. Just like, for example, ID 11181, who earned 28 ETH, and ID 20920, 24 ETH with zero referrals. How does the Forsage work? In the Forsage X3 program, below you are 3 places in one line. In the Forsage X4 program, below you are 2 lines, 2 places in the first line, and 4 places in the second line. When you register in Forsage with 0.05 ETH, you open both programs simultaneously. In each of these 2 programs, Forsage X3 and Forsage X4, there are 12 slots. Each subsequent slot you purchase is 2 times the value of the previous one, and it generates twice the income as well. Each slot generates you income unlimited times with no expiration. For example, the 0.1 ETH slot generates you 0.1 ETH over and over again. The 0.2 ETH slot generates you 0.2 ETH again and again. Then 0.4 ETH, 0.8 ETH, 1.6 ETH, 3.2 ETH, 6.4 ETH, 12.8 ETH, 25.6 ETH, and 51.2 ETH slots generate you 0.4 ETH, 0.8 ETH, 1.6 ETH, 3.2 ETH, 6.4 ETH, 12.8 ETH, 25.6 ETH, and 51.2 ETH respectively over and over again an unlimited amount of times. In Forsage X3, you get 100% of the payment to your ETH wallet from spots 1 and 2. Spot 3 reopens the slot again, and payment goes to your upline. In Forsage X4, members who take 2 places below you in the first line go to your upline, or they spill over to someone else on your team. You receive 100% of the payments on the second line. Spots 3, 4, and 5 go to your wallet, while spot 6 reopens this slot's matrix again with empty spots, and payment goes to your upline. There is a system in place that incentivizes members to upgrade to higher slots in the matrix from the profits they already made. Otherwise, they can lose profits while you can earn extra profits. This ensures that active members will eventually upgrade to all 24 slots. You can only earn ETH on active slots. How many slots can be activated immediately? As many as you want. The more slots you activate, the more ETH you can earn.
and you will not miss out on any income from partners upgrading before you or matrix spillover. It is recommended to start with at least 4 to 6 slots in both Forsage X3 program and Forsage X4 program. Leaders usually start with more than 6 slots, some with 10 slots in each matrix to earn more from the beginning. You can create unstoppable passive income with Forsage as we grow and help more people around the world. For more details on how Forsage Matrix marketing works, please watch our full video. It's important to realize Forsage is not a get-rich-quick scheme. Income is not guaranteed, and if you want to earn a lot of Ethereum, then you need to put in the effort. Our winning team provides all the training, resources, step-by-step tutorials, and support to help you achieve your goals. Ethereum is second largest cryptocurrency after Bitcoin, with the most developers than any other cryptocurrency. Since 2015, it went up in value from $1 to $1,400 at the peak, and experts predict the price of ETH can skyrocket to over $2,000 in the next 12 to 24 months. It's time to earn Ethereum now. To get started, you need to install the Trust Crypto Wallet app on your phone or MetaMask ETH Wallet on your PC and deposit enough ETH there to register and then activate the amount of slots that you want one by one. Please watch the step-by-step video tutorials on how to get started and contact the person who shared with you this video. Welcome to Forsage, the first ever 100% decentralized matrix project. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ आप सभी लोगों का 1 सेकेंड्स इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। मीटिंग का रूम फुल हो चुका है। अगर आपका कोई कैंडिडेट है, आपका कोई प्रॉस्पेक्ट है, आपका कोई भाई बंधु है, तो वो यूट्यूब पे जाके लाइव देख सकता है, क्योंकि मीटिंग का स्पेस यहाँ पे 300 ही रहता है इस समय, इसलिए आप ये मीटिंग जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे लाइव। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरा का पूरा प्लान शेयर करना चाहूँगा, पूरा का पूरा बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि जब मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो प्लीज़ डोंट रेज योर हैंड, और कोई भी अनवांटेड मैसेज नहीं करेगा चैट बॉक्स पे। डिस्टरबेंस होता है और समझ में नहीं आता, क्योंकि बड़ा सा हाथ आता है मेरे पे। अगर मुझे स्क्रीन नहीं दिखेगी तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। इट्स इरिटेटिंग, इसलिए आप थोड़ा सा वेट करें। लास्ट में डेफिनेटली मैं आपसे 100% बात करूंगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट, जो कि है फॉरसेज, और इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि लास्ट में जब हम ये मीटिंग एंड करें, जब मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड करूं, तो सारे लोग ये जान चुके हैं कि फॉरसेज क्या है। लेकिन आगे बताने से पहले कि फॉरसेज क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फॉरसेज क्या नहीं है। फॉरसेज किसी भी प्रकार की कंपनी या पर्सन नहीं है कि कोई इसको कंट्रोल कर रहा है। किसी भी प्रकार का कोई उटपटांग टाइप का टेढ़ा मेढ़ा बिजनेस नहीं है। कोई भी हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, मतलब आरओआई प्लान नहीं है कि आपको रोज 1%, 2%, 3% मिलना है। किसी भी प्रकार की कोई फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक, कमोडिटी ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं कराई जाती है। किसी भी प्रकार की कोई करेंसी माइनिंग नहीं सिखाई जाती है। कोई भी इनिशियल कॉइन लॉन्च नहीं हो रहा है कि आज कोई 10 पैसे का कॉइन है, कल आपका 70 रुपीज़ का हो जाएगा, आपका पैसा 70 गुना 700 गुना हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसी प्रोडक्ट के साथ भी डील नहीं करना है। तो फिर फॉरसेज है क्या? फॉरसेज दुनिया का पहला 100% डिसेंट्रलाइज इथेरियम ब्लॉकचेन पे रन होने वाला मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। इथेरियम ब्लॉकचेन पे मतलब ऑटोमेटिकली इसको इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रन करती है। अब बीच में नाम आ गया इथेरियम का, तो इथेरियम क्या है? सबसे पहले इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है जो सेकेंड टॉप मोस्ट
क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड है, मतलब दुनिया में पैसे के मामले में नंबर सेकंड पे लीड कर रही है, आपका नंबर 1 पे आपका बिटकॉइन है पैसे के मामले में। लेकिन दुनिया में टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन के मामले में जो बिलियन डॉलर फर्म्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही हैं, वो इथेरियम ब्लॉकचेन है। ये वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है। इसके रिलेटेड एक डेटा था मेरे पास जो मैंने अभी आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर किया है। आप वैसा डेटा आप वो वहाँ से रिपोर्ट पढ़ सकते हैं कि इथेरियम ब्लॉकचेन कहाँ पे जा रहा है। तो इथेरियम एक प्रकार का रेवोल्यूशनरी इंटरनेट ही है। एक ऐसा इंटरनेट है जहां मनी और पेमेंट सिस्टम बनाया जाता है। एक ऐसा इंटरनेट है जहां पर यूजर्स का डेटा ना तो कोई चुरा सकता है, ना ही उसकी कोई जासूसी कर सकता है। एक ऐसा इंटरनेट है जो ओपन फाइनेंशियल सिस्टम पे बना हुआ है, मतलब बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल मैकेनिज्म पे काम करता है और न्यूट्रल ओपन एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है, मतलब किसी कंपनी या पर्सन से कंट्रोल नहीं हो सकता। ये इथेरियम ब्लॉकचेन के बेसिक प्रिंसिपल रूल्स हैं जो इथेरियम ब्लॉकचेन इटसेल्फ फॉलो करती है। इसीलिए जो प्रोजेक्ट्स, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स इन रूल्स को फॉलो करते हैं वो ही 100% डिसेंट्रलाइज होते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अगर आप ये जानना चाहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो यहां पे एग्जांपल के तरीके से आपको मैं बताता हूं। आपको यहां पे एक घर बेचने वाला है, ये घर खरीदने वाला है और ये दोनों के बीच में एक डील हुई है कि भाई मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप मेरे को घर इतने में बेच देंगे। कुछ भी डील हो सकती है और ये दोनों की डील पे जो स्टैंप करेगा, मतलब जो मोहर लगाएगा, जो अप्रूव करेगा, वो आपका रजिस्टर्ड और ऑफिस हुआ या आपका कलेक्ट्रेट हुआ। ये दोनों जगह पे होता है। ये एक एग्जांपल के तौर पे हो गया। मतलब इस डील के तहत ये नेटवर्क इनको अप्रूव कर देगा, इस व्यक्ति को घर मिल जाएगा, ठीक है ना, ये घर खरीद लेगा, ये व्यक्ति को पैसे मिल जाएंगे। अब आपका इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है? एक सेंडिंग एड्रेस होता है, एक रिसीविंग एड्रेस होता है और अगेन ये डील है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट है और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट के हिसाब से ये नेटवर्क ये दोनों की डील आपस में अप्रूव करता है। मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स है जो ERC-20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखी जाती है और जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फिर ना तो कोई चेंज कर सकता है, ना ही कोई बदल सकता है, ना ही कोई मिटा सकता है। इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के सहारे पूरी की पूरी आपकी ये प्रोजेक्ट सेम कंडीशन पे निरंतर चलती रहेगी। डिसेंट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एडमिन नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, कोई कंपनी या पर्सन इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। अगर मैं कंप्यूटर भाषा में बात करूं तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सर्वर या कंप्यूटर से चल रहा है कि कोई गया और बटन बंद कर दिया और आपका प्रोजेक्ट गोल। नहीं, इस दुनिया में जहां जहां इंटरनेट है, जहां जहां इथेरियम ब्लॉकचेन के सर्वर्स हैं और ये सर्वर्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स रहते हैं जिनके ऊपर ये आपका इथेरियम ब्लॉकचेन और इंटरनेट के सर्वर मौजूद हैं। वहां पे forces.io का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद है। इसी कारण से ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस दुनिया में इंटरनेट रहेगा, जब तक इस दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। प्लस ये आपका हैक भी नहीं हो सकता कि कोई इसको हैक कर लेगा, कोई आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिलीट कर देगा, कोई बंद कर देगा, कोई बदल देगा। ये सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे जीरो है क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट है और इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ऑटोमेटिकली रन होता है। इसी कारण से यहाँ पे जो क्रिएटर्स होते हैं वो केवल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले कर देते हैं, जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली उस प्रोजेक्ट को रन करती है। इसलिए क्रिएटर्स का कोई भी कंट्रोल नहीं होता आपके फंड के ऊपर। किसी भी प्रकार का कोई एडमिन की जरूरत नहीं होती कि सिस्टम रन करने के लिए जरूरत है। किसी भी प्रकार का कोई मैनेजमेंट अफेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि मैनेजमेंट होता ही नहीं है। और प्लस आपका जो कैपिटल है 100% सेफ एंड सिक्योर जगह है। अगर मैं क्रिएटर ऑफ फोरसाइज की बात करूं तो इंटरनेट के ऊपर
31 जनवरी 2020 को forces.io प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया गया था इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी यूज करके रन होता है। और जो ये मिस्टर लाडो है ये आपके क्रिएटर हैं, मतलब इन्होंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और क्रिएट करने के बाद उन्होंने इस सिस्टम से कोई भी जवाबदारी नहीं है, वो भी इस सिस्टम में केवल 1 नंबर आईडी लेकर हैं। उन्होंने भी पहले अपने 10 पार्टिसिपेंट 10 प्रोस्पेक्ट को प्लान पिच किया होगा, बताया होगा, तब लोग उनसे जुड़े होंगे और आज जुड़ते जुड़ते लगभग 6,80,000 हम क्रॉस कर चुके हैं, जो कि मात्र 6 महीने भी नहीं लगे हैं। इस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं। ये जॉन टर्नर है, इसी तरह और भी हमारे साथ टेक्निकल सपोर्ट टीम में है। आप इनसे हर वेडनेसडे रात 10:30 बजे और हर सैटरडे रात 10:30 बजे आप और जैसे मैं आप जूम मीटिंग कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से जूम मीटिंग में आप इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन आर पूछ सकते हैं। इस सिस्टम में एनरोल होने के लिए मात्र 0.05 इथेरियम, आपको आज के इथेरियम कॉइन का ओनली 5% देना है और आप इस सिस्टम में एनरोल हो जाएंगे। और एनरोल होने के बाद आप यहाँ से 5,000 गुना 50,000 गुना जैसी आपकी वर्किंग वैसा आपका इनकम यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं और उसके थ्रू आप मिलेनियर और बिलियनियर दोनों बन सकते हैं। 100% डिसेंट्रलाइज ही है, मैं आपको बता चुका हूँ। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि इस सिस्टम में आपके द्वारा मेरे द्वारा लगाया जाने वाला इन्वेस्टमेंट अमाउंट इथेरियम आपके और मेरे बीच में ही बटेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई थर्ड पार्टी अकाउंट अवेलेबल नहीं है कि वहाँ जाके पहले इकट्ठा होगा फिर आपको विड्रॉल मारना है तो 24 घंटे बाद आएगा, 48 घंटे बाद आएगा, या कोई व्यक्ति आपका पूरा इथेरियम समेटेगा, झोले में भरेगा, भग जाएगा। नहीं, आपको यहाँ पे रियल टाइम पे आउट आता है। मतलब आपके लिए कोई भी पे आउट जनरेट हुआ, सिस्टम ने किसी भी प्रकार का पे आउट जनरेट किया, विद इन सेकेंड्स आपके पर्सनल क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट में आएगा। आप अगले सेकेंड ही खर्च कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इफ एंड बट नहीं है कि आपको पहले 4 डायरेक्ट करना है, 2 डायरेक्ट करना है तब आपको ये अमाउंट निकालने मिलेगा। नहीं, आपके लिए कोई भी पे आउट आया आप उसको अगले सेकेंड ही निकाल सकते हैं। इथेरियम ब्लॉकचेन बेस्ड मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। नेलिजिबल अमाउंट है इसको स्टार्ट करने के लिए, जो कि मात्र इथेरियम 0.05 है। अभी मैं आपको इसकी सारी वैल्यूज भी बताता हूं अपने INR में। इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको पहले बताया था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना तो डिलीट किया जा सकता है, ना ही इंटरनेट से हटाया जा सकता है, ना ही इसको बंद किया जा सकता है। आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा ट्रस्ट वॉलेट। ये आपके एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। टोकन पॉकेट आपका एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए है, और आपका मेटामास्क आपके लैपटॉप और पीसी पे ब्राउज़र पे इंस्टॉल होता है, आपका फायरफॉक्स ब्राउज़र पे या गूगल क्रोम पे एज ए एक्सटेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आप इसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं तब आपको 12 वर्ड्स का फ्रेज मिलता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपने उसकी फ़ोटो खींच ली और फ़ोटो खींच के रख ली और आपने फिर उसको व्हाट्सएप पे किसी को भेजा। आपको ये प्रैक्टिसेस बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड आपसे खो गया या आपका वो 12 वर्ड आपसे खो गई या किसी को पता लग गई, तो इस सिस्टम के अंदर ना तो कोई पासवर्ड चेंज नाम की चीज़ है, ना ही कोई आपका फॉरगेट पासवर्ड जैसी चीज़ है। एक बार खो गई तो फिर आपको कभी नहीं मिलेगा सर, मैं सिंपल से मैं बता दे रहा हूँ, ना ही चेंज होगा। इसलिए आप इस चीज़ का बिल्कुल याद रखेंगे। प्लस अब इसमें आपको बैलेंस चाहिए लगभग 0.08 इथेरियम का। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली मीटिंग्स में बताया था कि इथेरियम का रेट बढ़ जाएगा, तो इथेरियम का रेट इंक्रीज हो रहा है। तो आज ये 0.08 लगभग $21 का है, और ये आपका 0.05 लगभग आज की डेट में $13 से भी ज़्यादा का है। मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूं, आप इसको $14 भी मान सकते हैं। मतलब कल तक जहां पे 1100 रुपए का था, आज ये 1200 रुपए के लगभग हो गया अप्रॉक्स, और ये अमाउंट जाके पहुंच गया समथिंग अराउंड 1900। मतलब अगर आप अपनी आईडी एनरोल करना चाहते हैं तो सिस्टम में तो केवल 0.05 जाएगा, जिसकी डॉलर में वैल्यू $13 से थोड़ी ज़्यादा है और INR में लगभग 1200 है, और उसके ऊपर लगने वाला चार्ज
$2 $4 एक्स्ट्रा आपका इन वॉलेट्स के द्वारा लिया जाने वाला नेटवर्क फीस है, गैस फीस है। सिस्टम के अंदर एनरोलमेंट के लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है और ना ही कोई चार्ज जब आपको पे आउट आता है तब लगता है। पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन है विदाउट एनी चार्ज कटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया 0.05 सिस्टम के अंदर जाता है, फोर्सेज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, जाते साथ ही 2 भाग में बट जाता है। एक 0.025 जाके लग जाता है X3 के अंदर और एक जाके लग जाता है X4 के अंदर। X3 हमारा 1/3 मैट्रिक्स रूल के हिसाब से काम करता है, X4 हमारा 2/4 मैट्रिक्स रूल के हिसाब से काम करता है। अगर मैं X3 की मैं बात करूं तो ये वर्किंग है, मतलब आपकी पर्सनल टीम है जहां से आपको पे आउट आना है, जिसको आप बिल्ड करेंगे। मतलब आपने जिसको डायरेक्ट किया है और वो डायरेक्ट जिनको 100% डायरेक्ट करने वाले हैं उनका अमाउंट, उनका इनकम यहां पे कैलकुलेट होगा और आपको मिलेगा। यहां पे जो आप व्हाइट कलर की आईडी देख रहे हैं ब्लू कलर के बॉक्स में मेरी है, ऊपर अपलाइन की है पर्पल कलर की, नीचे ये जो 3 पोजीशन है इस पे मेरे प्रोस्पेक्ट आएंगे, मेरी डाउनलाइन आएगी। तो जो भी नंबर 1 पोजीशन पे आएगा उसका पे आउट मुझे मिलेगा, सेकंड से मुझे मिलेगा, थर्ड से अपलाइन को चला जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा अपलाइन को चला जाएगा, जिसके कारण ये स्लॉट फिर से री इन्वेस्ट हो जाएगा, रीबाय हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट साइकिल में फिर से आपको 2 टाइम पेमेंट आए और 1 टाइम पेमेंट आपके अपलाइन को जाए। ग्राफिकली समझाता हूं, जब आप सिस्टम में आते हैं तो आपका स्लॉट कुछ इस प्रकार से दिखता है। नंबर 1 पोजीशन पे कोई मैंने प्रोस्पेक्ट लगाया, उसका पे आउट मुझे आ गया, सेकंड पे लगाया उसका भी मुझे आ गया, थर्ड से मुझे नहीं आया, अपलाइन को चला गया, जिसके कारण ये री इन्वेस्ट हो गया, स्लॉट्स फिर से खाली हो गए, साइकिल 2 रेडी हो गई। मतलब कि सेकंड साइकिल में फिर से मुझे 2 टाइम पेमेंट आएगा और 1 टाइम पेमेंट अपलाइन को जाएगा। सिंपल कहने का मतलब यह है कि जब भी X3 की किसी पर्टिकुलर स्लॉट या बोर्ड या लेवल की आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है तो आपको 2 टाइम पेमेंट आएगा और 1 टाइम पेमेंट अपलाइन को जाएगा। सर आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं और ये अनलिमिटेड टाइम आ सकता है। X4 ये ऑटोफिल है, ऑटो पूल है, प्लस ये टीम वर्क इनकम है। टीम वर्क इनकम इसलिए मैंने इसको नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे आपकी अपलाइन, अपलाइन टू अपलाइन, लेफ्ट क्रॉस लाइन, राइट क्रॉस लाइन, आपकी डाउनलाइन टू डाउनलाइन, सबका काम यहाँ पे कैलकुलेटिव टोटल आपको यहाँ पे इनकम देता है। कहने का मतलब ये है आपकी सारी की सारी जो यहाँ पे नीचे आईडीज देख रहे हैं 6 तक, ये तो मेरी आईडी हो गई व्हाइट वाली, अगेन ये पर्पल वाली आईडी अपलाइन की है। नीचे जो आप आईडी देख रहे हैं 6, ये कहीं से भी आ सकती है, आपकी डाउनलाइन टू डाउनलाइन, लेफ्ट क्रॉस लाइन, राइट क्रॉस लाइन, अपलाइन टू अपलाइन, कहीं से भी। लेकिन जो भी आईडीज आके 1 नंबर 2 नंबर पोजीशन पे लगेगी वो आपकी अपलाइन को चला जाएगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको आएगा, सिक्स्थ अगेन अपलाइन को जाएगा। लेकिन इस अपलाइन को जाने के कारण आपका स्लॉट अगेन री इन्वेस्ट हो जाएगा, रीबाय हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो जाएगा, फिर से 3 टाइम पेमेंट्स आपको आएगा, 3 टाइम पेमेंट अपलाइन को आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, ऐसे स्लॉट्स आपको मिलते हैं। तो जैसे ही 1 नंबर पोजीशन पे कोई आईडी आई, अपलाइन को चली गई, थर्ड से मुझे पे आउट आ गया, सेकंड से फिर अपलाइन को चला गया, फिफ्थ से पे आउट मुझे आ गया, फोर्थ से पे आउट मुझे आ गया, सिक्स से अगेन अपलाइन को चली गई, जिसके कारण ये स्लॉट फिर से खाली हो जाते हैं, साइकिल 2 के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब अब जैसे ही नेक्स्ट साइकिल आपकी ऑन हुई तो 3 टाइम पेमेंट आपको आएगा और 3 टाइम पेमेंट अपलाइन को जाएगा। इनडायरेक्टली मतलब यह है कि X4 की जब भी कोई साइकिल कंप्लीट होगी किसी बोर्ड, स्लॉट या लेवल की, तो 3 टाइम पेमेंट्स आपको आएगा और 3 टाइम पेमेंट अपलाइन हो जाएगा। इस सिस्टम में आपको जब पे आउट आता है तो वो आपको कलर कोड में दर्शाया जाता है, आपको दिखाया जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे अगर आपका जो ब्लू, टर्किश ब्लू ग्रीन कलर का है, वो आपको एज अ पर्सनल पार्टनर, मतलब आपका डायरेक्ट है, जिसको आपने डायरेक्ट किया है। अगर आपका पे आउट आपको यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का दिखा रहा है, मतलब ये आपको ओवरफ्लो आया है, स्पिल आया है आपकी लेफ्ट क्रॉस लाइन, राइट क्रॉस लाइन, अपलाइन या अपलाइन के द्वारा।
अब नीचे जो डार्क दिख रहा है, डार्क ब्लू कलर का अगर आपको दिख रहा है कि कोई आया है और आपका वो पे आउट है, तो उसका मतलब ये है कि आपके डायरेक्ट का डाउनलाइन है। अब अगर आपको पर्पल या पिंक कलर का पे आउट दिख रहा है, मतलब आपके नीचे टीम में किसी डाउनलाइन ने अपनी अपलाइन को सुपरसीड किया है और उस सुपरसीड के कारण उस अपलाइन को पेमेंट ना जाके आपको एज अ गिफ्ट आया है, इसलिए ये पिंक या पर्पल कलर का दिखता है। तो आपके स्टैटिक्स में एज अ एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखेगा, ये नीचे इस टाइप का साइन आएगा, और जिस व्यक्ति के होकर आया, जिसको लॉस हुआ है, उसके स्टैटिक्स में लॉस्ट प्रॉफिट होगा। क्योंकि उसको इसलिए लॉस हुआ है क्योंकि उसने टाइमली अपग्रेड नहीं किया था। टाइमली अपग्रेड ना होने के कारण उसको ये लॉस हुआ था। अब जो मैं आपको बता रहा हूं अपग्रेड, अगर किसी स्लॉट पर एक्टिवेटेड स्लॉट पर आपको अगर ये येलो कलर का साइन मिल रहा है, मतलब अगला स्लॉट आपको रीबाय करना है, तभी आपको नंबर 8 स्लॉट से रीसाइकिल होकर पेमेंट आएगा, नहीं तो रीसाइकिल होकर पेमेंट नहीं आएगा। और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नीचे आपके डाउनलाइन में किसी अपलाइन को सुपरसीड किया है। अब अगर 9 नंबर बोर्ड पे आए, अब यही साइन अगर 9 नंबर बोर्ड पे आया जो एक्टिवेटेड नहीं है X3 और X4 में दोनों में, तो इसका मतलब यह है आपके डायरेक्ट ने आपसे पहले ये 9 नंबर वाला बोर्ड परचेज कर लिया। सिंपल है सर। X3 और X4 हमारे पास दो प्रोग्राम है, दो अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम है, दोनों में 12-12 बोर्ड, 12-12 बोर्ड स्लॉट्स लेवल अवेलेबल है। सेकेंड वाला 1 का डबल है, थर्ड वाला सेकेंड का डबल है, 4 वाला थर्ड का डबल है। इसी प्रकार से बढ़ते हुए 51.2 इथेरियम तक बोर्ड जाते हैं X3 और X4 दोनों में। आप जिस भी बोर्ड पे एक्टिवेटेड हैं, सपोज करो आप 6.4 पे हैं, तो आपको अगर कोई पे आउट आएगा नीचे से तो वो 6.4 ही आएगा। यहाँ पे 100% है, कहीं पे 50% नहीं है। मतलब जो बोर्ड पे आपके अमाउंट लिखा है वही आपको नीचे से आना है पूरा 100%। जब आप इस सिस्टम में एंटर होते हैं तो नंबर 1 बोर्ड X3 का और नंबर 1 बोर्ड X4 का एक्टिवेटेड मिलता है। इसलिए सिस्टम आपको एक्टिवेट करता है ताकि आप X3 प्रोग्राम में और X4 प्रोग्राम में एट अ टाइम एंटर हो जाएं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड नंबर का बोर्ड जब मैं बाय करूंगा तो सेकेंड नंबर का बोर्ड X3 का मैंने बाय किया तो X4 का मुझे मिल जाएगा, नहीं, आपको नेक्स्ट टाइम से मैन्युअली बाय करना पड़ेगा। थर्ड बात, सपोज करो मैंने फर्स्ट डायरेक्ट किया, सेकेंड किया, थर्ड किया, जैसा ही फोर्थ करूंगा तो सेकेंड नंबर का स्लॉट मिल जाएगा, नहीं, यहां पर ऐसा भी नहीं होता है। इट्स रॉन्ग। सही क्या है, अगर आपने 10 भी डायरेक्ट कर लिए, 20 डायरेक्ट कर लिए, 50 डायरेक्ट कर लिए, सपोज करो मैंने 20 डायरेक्ट कर लिए, तो पे आउट कैसा आएगा, पहले का मुझे, दूसरे का मुझे, थर्ड का अपलाइन, फोर्थ का मुझे, फाइव्थ का मुझे, 6 का अपलाइन, 7 I8 मुझे, 9 अपलाइन। मतलब इसी प्रकार से आपको ये 20 प्रोस्पेक्ट आपको पहले 1 नंबर बोर्ड पे आउट देंगे। जब ये 20 प्रोस्पेक्ट आपके सेकेंड लेवल को अचीव करेंगे, बाय करेंगे, तब आपके सेकेंड लेवल पे आएंगे और फिर से आपको पे आउट देंगे। सेम मैकेनिज्म है। मतलब आपका एक प्रोस्पेक्ट आपको 12 टाइम X3 से, 12 टाइम X4 से, टोटल 24 टाइम्स। ये मैं तब बात कर रहा हूं जब एक एक टाइम रिसाइकिल होगा, और अनलिमिटेड टाइम इनकम करवा सकता है सर आपका डाउनलाइन भी। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं मिनिमम में मैक्सिमम। मिनिमम में मैक्सिमम मतलब सपोज करो मैंने 1 2 3 बोर्ड और 1 2 3 बोर्ड X3 और X4 प्रोग्राम के एक्टिवेट किए $100 में। कितने में सर? $100 में। अभी मैंने आपको बताया था जब X3 की साइकिल चलती है तो 2 टाइम पेमेंट आता है और जब X4 की तो 3 टाइम्स। अब किसी पर्टिकुलर डे में X3 की तीनों बोर्ड की और X4 की तीनों बोर्ड की पूरी साइकिल चली, पूरी की पूरी। मतलब ऊपर से 2 टाइम पेमेंट आया, नीचे से 3 टाइम, टोटल 5 टाइम्स इंटू 5 कर दो तो मतलब आप $500 भी कमा सकते हैं $100 लगा के। कहने का मतलब ये है आप इस सिस्टम में अगर एज अ सिस्टम से काम करेंगे और दिमाग से काम करेंगे तो आप मिनिमम में भी मैक्सिमम कमा सकते हैं। और ये सिस्टम लोगों को जोड़ने का है।
जितने ज़्यादा आप लोग लाएंगे उतने ज़्यादा आपकी साइकिल्स रिसाइकिल होगी और उतने टाइम आपको मैक्सिमम टाइम पेमेंट आएगा। अब X4 की मैं बात करता हूँ, जिसको आप नॉन वर्किंग भी कहते हैं। सर पर ये नॉन वर्किंग नहीं है, ये टीम वर्क इनकम है। सबको जल्दी है X4 के पूरे स्लॉट्स बाय करने की। सर कोई भी नंबर 1 डे में पहले दिन आते ही 1 ID नहीं बन जाएगा, 8679 नहीं बन जाएगा, 90962 नहीं बन जाएगा। कहने का मतलब ये है आप एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते। आप इन्वेस्टमेंट जरूर लगा सकते हैं पर आप टीम नहीं बना सकते। इट्स अ टीम वर्क। तो अगर आप टीम वर्क के हिसाब से चलेंगे तो आपको ज़्यादा पे आउट देगा। कैसे सारे बोर्ड खरीदना है मैं आपको बताता हूं, और आप इसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह लें, सिप की तरह लें, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। सपोज करो पहला वाला बोर्ड आपका $5 का है, फिर ये $10 का है, ये 20 का है, 40 का है, डबल होते जा रहा है इथेरियम में अमाउंट में। आपको आना कितना है सर एक्सपोर्ट से? 3 टाइम पेमेंट्स आना है। कुछ नहीं करना है, 3 टाइम पेमेंट्स में से 2 टाइम इन्वेस्ट कर देना है और 1 टाइम आपको अपनी पॉकेट में रख लेना है। कैसे? इधर से आना है $15, आपको नेक्स्ट वाले में $10 इन्वेस्ट कर दीजिए, $5 पॉकेट में रख लीजिए। इधर से आना है आपको 20 इन्वेस्ट कर दीजिए, $10 पॉकेट में रख लीजिए। यहाँ से आना आपको 60 में 40 इन्वेस्ट कर दीजिए, $20 आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका पे आउट भी आता जाएगा, आपकी टीम भी बनती जाएगी और आपका नेटवर्किंग का मजा भी आएगा सर, जिसके लिए आप यहां पे आ रहे हैं। अब अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, अगर कोई व्यक्ति ओनली 3 डायरेक्ट्स करता है, केवल 3 डायरेक्ट्स करता है और वो 3 डायरेक्ट्स आगे 100% 3 डायरेक्ट्स करते चले जाते हैं और अपने 12 स्लॉट्स तक एक्टिवेट भी करते चले जाते हैं, तो मात्र 12 वीक्स 3 महीने में भी आप टोटल 1431 इथेरियम अर्न कर सकते हैं। X3 से 613 और आपके X4 टीम वर्क इनकम से 817 इथेरियम, मतलब टोटल लगभग 3.5 लाख आप USD कमा सकते हैं, जो कि आपका इंडियन रुपीस में आपका 2.5 करोड़ होता है। ये मैं तब बता रहा हूं सर अगर आप केवल 3 डायरेक्ट करते हैं तब। अगर आपने 10 डायरेक्ट कर दिया, 20 डायरेक्ट कर दिए, 60 डायरेक्ट कर दिए, तो ये फिगर और इंक्रीज हो जाएगा। आइडियल स्टार्ट है, मैं इसको बूस्टअप प्लान बोलता हूं। आप अगर 3 स्लॉट्स X3 के और 3 स्लॉट्स X4 के एक्टिवेट करके सिस्टम में आते हैं तो आप जल्दी अर्न कर सकते हैं। इसलिए अर्न कर सकते हैं क्योंकि आप ये दोनों का अमाउंट आप अपना पूरा पॉकेट में रखेंगे और इस वाले स्लॉट से X4 का 2 टाइम का इन्वेस्टमेंट आप अगले स्लॉट में करते हैं और 1 टाइम का आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। और यहाँ का 2 टाइम का इन्वेस्टमेंट आप अगले तक करते जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीढ़ी नहीं चढ़नी है, केवल 12 स्लॉट्स तक जाना है और पूरी लाइफ टाइम में आपको केवल 1 टाइम एक्टिवेट करना है। उसके बाद ये मल्टीपल टाइम आपका रिसाइकिल होकर आपको मल्टीपल टाइम पे आउट देगा। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, पिछले 5 मंथ्स हो चुके हैं, जिसके कारण से इंडिया में ज़ैपे, यूनोकॉइन, वजीरेक्स ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट्स हैं जिनको गवर्नमेंट से लाइसेंस प्राप्त है। आप यहां पर अपनी KYC ओके करवा के फिर अकाउंट वेरीफाई करा के आईना ट्रांसफ़र करके इथेरियम परचेज कर सकते हैं। फिर उन इथेरियम को आप ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क में भेजकर आप ID एनरोल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। फिर आप जो फोर्सेस से कमा रहे हैं इथेरियम, इन वॉलेट्स पे वापस भेज के INR में कन्वर्ट करके आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। इट्स टोटली ईजी और 100% 24/7 काम करते हैं एक्सचेंज। ऐसा नहीं है कि सुबह खुलें और रात को बंद हो जाएंगे। तो ये था पूरा का पूरा प्लान, जो कि वर्ल्ड का पहला 100% इथेरियम ब्लॉकचेन बेस्ड 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। और आपकी यहाँ पे एनरोलमेंट फीस मात्र 0.05 इथेरियम, जो कि आज के इथेरियम की ओनली 5% है। ये तो हुआ सर प्लान खत्म।
अब मैं आता हूं कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन बातें पे। अगर आप इथेरियम के बारे में और जानना चाहते हैं और नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप ethereum.org पे जाके विजिट कर सकते हैं और आप इंडिविजुअली डेवलपर और एंटरप्राइज, मतलब हर चीज के लिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, कैसा यूज होता सकता है आप उसको पढ़ सकते हैं। बार बार बात हो रही थी कि इथेरियम का रेट बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? सबसे पहला रीजन मैंने आपको बार बार बताया है कि $billion फर्म्स इस पे इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं, अपने प्रोजेक्ट्स पेमेंट सिस्टम लाने वाली हैं, केवल वो वेट कर रहे थे इथेरियम 2.0 लॉन्च होने का। और देखिए कल खबर आई है कि 4 तारीख को टेस्ट होना है कि इथेरियम 2.0 कंप्लीट है तो 100% 4 तारीख को लाइव हो जाएगा। और लाइव की रिपोर्ट आते ही कल से इथेरियम लगभग 8% बाउंस कर चुका है। आप जो आईडी अमाउंट टोटल 1600 रुपीज दे रहे थे, 1500 दे रहे थे, आज वो पहुंच चुकी है 2000 ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ इथेरियम ओनली। तो कहने का मतलब है अब ये यहां पर रुकेगा नहीं, आगे और ही आपके पास जितनी कम में ज्वाइनिंग लगाना चाहते हैं आपके पास इस मंथ का ही मौका है। एंड तक जितने डेज बचे हैं, मैंने पहले ही भी बोला था आपसे कि जुलाई का ही महीना है अगर आप कम में ऑन होना चाहते हैं। जो अभी एक्टिवेट हो जाएगा उसको ज़्यादा फायदा रहेगा। ये देखिए ये बहुत बड़े बड़े नाम है सर, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटलिटी, सिटीज़, गवर्नमेंट, सब पूरे के पूरे ब्लॉकचेन इथेरियम यूज़ कर रहे हैं। एक रिपोर्ट मैं आपको भेज भी चुका हूँ। जेपी मॉर्गन बैंक यूएस का सबसे बड़ा बैंक है, डिजिटल यूएसडी बना चुका है। अमेजन आपका नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड है, अमेजन वेब सर्विसेज के नाम पे पेमेंट सिस्टम बना चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर बना चुका है जिसका नाम एज़्योर है। ये एक सिटी है स्मार्ट दुबई, ये इनकी ऑफिशियल साइट है smartdubai.e। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ ये लिखा हुआ है कि दुबई विल बी द फर्स्ट सिटी फुल्ली पावर्ड बाय ब्लॉकचेन बाय 2020। मतलब 2020 के एंड तक पूरी की पूरी सिटी ब्लॉकचेन पे चली जाएगी। मतलब 2021 में कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे जाता है, रह रहा है, यहाँ के बासिंदे हैं, तो उनको सब्जी, आपका किराना, आपका कपड़ा, कार, फ्लैट सब ब्लॉकचेन से खरीदना पड़ेगा। हॉस्पिटलिटी, बैंकिंग सब कुछ ब्लॉकचेन से, ना पासपोर्ट ना वीज़ा, सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे। और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होने वाला है? तो गवर्नमेंट ने एक डेटा दिया हुआ है यहाँ पे कि अडॉप्टिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुबई कम से कम 5.5 बिलियन दिरहम बचा लेगा केवल डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग से। मतलब डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट का रख रखाव, जांच पड़ताल करने में लगभग ये इतना पैसा खर्च करते हैं साल भर में, और ये पूरा का पूरा पैसा बचा लेंगे, जो कि इक्वल है एक बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बनाने के लिए। पूरी की पूरी। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। तो मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो एक बार देखें और समझें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। How can we manage transactions easily and securely in a complex modern world? Introducing blockchain, a transformational technology that will make your life easier. Say you want to buy an apartment in Dubai. Usually you would run around to many different entities with lots of documentation, which can feel overwhelming. On blockchain, you can access information from one highly secure digital network, which reduces time and effort. On blockchain, each piece of information about your apartment is called a block, which contains an unalterable, detailed ledger of information. There are blocks of info for everything from your passport and visa details, bank details, DWA registration, that all sit together to form part of the chain of information. Blockchain offers you trust, transparency, and traceability. Did you know that Dubai will be the first government in the world to conduct all its applicable transactions on blockchain by 2020? Smart Dubai, inspiring new realities. तो सर इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता मेरे पास कि बताने के लिए कि ब्लॉकचेन क्या होता है और कैसे काम करेगा। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड में forces.io कहाँ लीड कर रहा है, तो आप eatgasstation.info पे जाके चेक कर सकते हैं। ये वर्ल्ड के टॉप 25 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इथेरियम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट की रैंकिंग बताता है।
तो आप यहाँ पे देखेंगे हम सेकंड नंबर पे लीड कर रहे हैं, अभी 6 मंथ भी नहीं हुआ है और सेकंड नंबर पोजीशन पे हम आ चुके हैं। ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इथेरियम एड्रेस है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाएंगे, ईथर स्कैन के नेटवर्क के ऊपर चले जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई पैसा इकट्ठा नहीं होता। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कल 125 था तो आज 140 इसलिए है क्योंकि इथेरियम का रेट बढ़ गया, इसलिए ERC20 के टोकन्स भी अदर्स उसका भी रेट बढ़ेगा जब इथेरियम का रेट बढ़ेगा। कुछ लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे वेरीफाइड कहलाता, तो कॉन्ट्रैक्ट के अगर ग्रीन टिक मार्क है तो आप देखेंगे पूरा का पूरा सोर्स कोड वेरीफाइड रहता है इथेरियम ब्लॉकचेन पे, पूरा का पूरा ओपन सोर्स कोड अवेलेबल है। किस हिसाब से ये काम कर रहा है, किस हिसाब से ये पे आउट दे रहा है, आप पूरा का पूरा ये किसी कोडर या डेवलपर से चेक करा सकते हैं। सिंपल एंड ईजी है। ये हमारी साइट है forces.io, किसी भी ब्राउजर पे आप जाके एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो आपको वीडियो दिखाया था वो मार्केटिंग वीडियो में यहाँ पे दिखता है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपके इसके 6 की पॉइंट्स हैं, ये जो मैंने आपको एक एक करके अपनी भाषा में समझाएं। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली लिखा हुआ है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको क्वेश्चन आर मिलेगा। मैं चाहता हूँ पूरे A to Z जितने क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे आप रीड आउट करें और पढ़ें, तब आपको पता चलेगा कि लोग जो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं सारों का जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा स्टैटिकल डेटा मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी तक इस सिस्टम में हमारे साथ 6 लाख, ये थोड़ी पुराना है, मैं एक्चुअली इसको रिफ्रेश कर दूँ। अभी कितना दिखा रहा था सर, 6,83,486 लोग आ चुके हैं फोर्सेस फैमिली। टोटल न्यू फॉर द दिन मतलब विद इन 24 आवर्स 8,950 लोग आ चुके हैं इस सिस्टम में। टोटल इथेरियम यहाँ से 5,05,613 इथेरियम लोग यहाँ से अर्न कर चुके हैं। टोटल इथेरियम यहाँ पे मतलब इतनी USD डॉलर वैल्यू के इथेरियम पिछले 24 घंटे के दौरान 43,75,845 USD डॉलर वैल्यू ऑफ इथेरियम लोग यहाँ से अर्न कर चुके हैं। आप लॉगिन में जाइए, जैसा कि मैंने बताया था कोई एडमिन नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, आप कोई भी आईडी नंबर डाल के यहाँ पे खोल सकते हैं। ये देखिए मैंने आईडी नंबर खोली 106397। टोटल 25 डायरेक्ट्स हैं। $16,000 मतलब 57 इथेरियम यहाँ से अर्न कर चुके हैं। टोटल आपके X3 से 4.2 इथेरियम और आपकी टीम वर्क आपके X4 से 53 इथेरियम अर्न कर चुके हैं। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो आप इनकी टीम में ऑफिस में जाके पार्टनर्स में चेक कर सकते हैं। अगर आपको टीम चेक करना है तो टोटल 1900 से ज़्यादा लोगों की टीम है। आप स्टैटिक्स के अंदर ये देख सकते हैं कि कहाँ से सिस्टम से अमाउंट आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कौन से डेट टाइम ट्रांजैक्शन नंबर पे आ रहा है, सब कुछ चेक होता है। इंफॉर्मेशन के अंदर इंस्ट्रक्शन के अंदर प्लान अवेलेबल है, कलर कोड में अवेलेबल है, आप यहाँ पे जज आउट कर सकते हैं। अगर ऑफिस के अंदर मेन पैनल पे आऊँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जैसा मैंने पहले बताया था X3 के 12 बोर्ड्स और X4 के 12 बोर्ड लाइफ टाइम में केवल आपको 1 टाइम एक्टिवेट करना है। तो आप यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट बोर्ड X3 का 17 टाइम रिसाइकिल हो चुका, मतलब 34 टाइम्स 0.025 106397 को आ चुका है और 17 टाइम पेमेंट्स अपनी अपलाइन को दे चुका है। X4 में 3 टाइम पेमेंट्स आपका, 3 टाइम पेमेंट्स अपलाइन का, तो 10 टाइम रिसाइकिल हुआ है, तो 30 टाइम्स 0.025 106397 जिसकी आईडी है प्लस 30 टाइम्स आपके अपलाइन को भी दे चुका है। ये पर्सनल वॉलेट है जिस व्यक्ति का अकाउंट है। $10 पड़े हुए हैं। कोई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर पे आउट कहाँ पे दिखता है, जो फोर्सेज पे आता है, तो इंटरनल ट्रांजैक्शन पे आप जाके देख सकते हैं कब कब क्या क्या पे आउट आया है। यहाँ ट्रांजैक्शन पे 340 पे क्लिक करेंगे तो आप लास्ट ट्रांजैक्शन से ये चेक कर सकते हैं कि ये सिस्टम में कितने से आया था और कितने दिन पहले आया था। 68 डेज पहले आए थे, प्लस आपका 0.07 इथेरियम ही इन्वेस्ट किया था, मतलब कि तब के समय से मात्र 0.05, और आज इस सिस्टम से आप देख सकते हैं कम से कम 13 से 14 लाख रुपए अर्न कर चुके हैं। कहने का मतलब है आप इस सिस्टम में इसी तरीके से अर्न कर सकते हैं। सबके लिए वही है,
ये पहला ऐसा सिस्टम है जहां आपकी क्रॉस लाइन और आपकी अपलाइन से भी आपको पे आउट आ सकता है, केवल डाउन लाइन बस से नहीं। लोग जो आपको गलत गलत बातें कह रहे हैं, बता रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है सर। और जो ये आप आईडी देख रहे हैं ये मेरी ही आईडी है 106397। 68 डेज में सर बिना घर से पांव बाहर निकाले मेरी ये इनकम है। तो आप भी अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहूँगा, साथ ही साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग रोज आते हैं और मेरे इस प्रेजेंटेशन को इतने ध्यान से सुनते हैं। थैंक यू फॉर दिस। अब मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूँगा सर, आप बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। प्रयाग सर आप अनम्यूटेड हैं। प्रयाग सर आप अनम्यूटेड हैं। जी सर। वेलकम सर, बताइए। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे 4 डायरेक्ट हो गए हैं। वेलकम सर। और मुझे ये प्लान बहुत अच्छा लगा है और मेरी जो डायरेक्ट की टीम है वो भी अच्छा काम कर रही है। तो मुझे $86 की अर्निंग हुई है अभी 1 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था। क्या बात है, क्या बात है सर। वेलकम सर, वेलकम, बधाई। और जी अच्छी काम कर रही है सर मेरी टीम। लेकिन मेरी 2 स्पील आई थी सर, जो शुरू में आ गई थी, कोई डायरेक्ट नहीं लगाया। तो उस टाइम पे मेरे इंटू 4 में 2 स्पील आई थी। तो मेरा क्या इंटू 4 का इनकम उनके पास जा रहा है सर। अपलाइन वो हो गए मेरे डायरेक्ट जो मैंने लगाए थे उनके। तो वो मुझे नहीं मिल के उनको क्यों मिल रहा है सर? किनको नहीं मिल रहा है सर? वो मुझे नहीं मिला इंटू 4 का इनकम सर। सर आप पहले प्लान समझे सर। मैंने आपको बताया है नंबर 1 और 2 पोजीशन पे जो आईडी आती है वो पहले आपकी अपलाइन को जाता है, आपको नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, कहीं से भी आएगी। अगर नंबर 1 जो फर्स्ट लाइन पे जो 2 सर्कल लग रहे हैं, अगर वहां पे आपको इनकम आके लगेगी तो वो ऑटोमेटिक आपकी अपलाइन को चला जाएगा सर। अच्छा अच्छा, जब भी वो उनको ही जा रहा है, जो वो स्पेल आई थी ना उन्हीं को गया है। हाँ, तो अब उसके नीचे सर स्पेल आने का मतलब है 2 व्यक्ति ऊपर से आके लग गए हैं। अब जब वो अपने नीचे काम करेंगे तो वो पे आउट आपको आएगा सर, उसका मतलब ये होता है। जी जी जी, वही थोड़ी समस्या हो रही थी कि $12 का मुझे वो नुकसान हुआ। ऐसा कोई नुकसान नहीं होता सर। इट्स जैसा है वैसा ही प्लान रहेगा, किसी आपके लिए और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए चेंज नहीं होगा सर। थैंक यू प्रयाग जी, थैंक यू। साहिद सर आप अनम्यूटेड हैं। साहिद सर बोलिए, आप अनम्यूटेड हैं। इंद्रजीत सर आप अनम्यूटेड हैं। यस प्रमोद जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, वेलकम सर, बताइए। मैं आपका ये वीडियो देख रहा था। आईडी नंबर जो आपने दिया था 106397, इसके ऊपर बेस करके ही सवाल कर रहा हूँ। नाउ लेट्स सपोज जब किसी को ज्वाइन किया जाता है एक्सट्रीम में फर्स्ट स्लॉट में आता है 0.025 स्लॉट में आता है। नाउ अगर मान लीजिए 3 जन को अगर ज्वाइन किया जाए तो पहला ही स्लॉट में आएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक रिसाइकल हो जाएगा। फिर और रिसाइकल का मतलब है और 3 जन को फिर से मैं ला सकता हूँ, राइट, जो कि फिर से 0.025 में आएगा। नाउ अभी आपका ये जो आईडी आपने दिखाया 106397, उसमें 25 डायरेक्ट आपने किया। इसका मतलब होता है 8 बार आपको रिसाइकिल होना चाहिए। 3 अगर 25 डायरेक्ट है तो मतलब 8 बार रिसाइकिल होना चाहिए, लेकिन उसमें दिख रहा है 17 रिसाइकिल। ये 9 तो सर एक्चुअली जो मेरे डायरेक्ट्स है इसका सर देखिए, मैंने जो 25 लोगों को डायरेक्ट किया है उसका तीसरे जन का पेमेंट, उसका तीसरा पेमेंट भी तो मुझे आएगा ना सर। कैसे? मेरे नीचे जो डायरेक्ट है, जैसे सपोज करो मैंने आपको डायरेक्ट किया, ठीक है,
जब आप अपने 3 प्रोस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो तीसरा नंबर का इस पे लोके किसको आएगा सर? आपकी अपलाइन को। आपकी अपलाइन कौन है? मैं हूं। ओके। तो यहां पर 25 डायरेक्ट हैं। 25 डायरेक्ट में से 10 डायरेक्ट ऐसे हैं जो 3-3 अपने नीचे टीम लगा चुके हैं। उनका मतलब 3 बार इनकम मेरे को आ चुका है, मतलब आप ऐसा कहिए। ओके। तो वो इनकम थर्ड वाला व्यक्ति का मुझे फिर से आएगा ना सर। ये अनलिमिटेड डेप्थ तक जा सकता है प्लान। ओके ओके। अब समझ में आया सर ये क्यों 17 टाइम रिसाइकिल हुआ? वो कुछ दिन सिस्टम में रहते रहते खुद सीख जाऊंगा। हाँ नहीं, अभी तो समझ में आ गया ना आपने जो क्वेश्चन पूछा। तो हाँ थोड़ा बहुत समझ में आया सर। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट किया, ठीक है, तो आप मेरे पहले डायरेक्ट हैं, लेकिन जब आप नीचे 3 डायरेक्ट करेंगे तो 2 डायरेक्ट का पैसा तो आपको आएगा X3 से। तीसरे नंबर का डायरेक्ट कहाँ जाएगा सर? ओके, तो इसका मतलब वो वाला रिसाइकिल दे रहे हैं। हाँ, तो वो मेरे आके लगा। अब मेरे फर्स्ट नंबर पे या थर्ड नंबर पे भी आके लगा। अगर सपोज करो मेरे इस वाले गोले पे आके लगा, ये इस वाले गोले पे आपका थर्ड प्रोस्पेक्ट आके लगा, तो वो फिर से इसके ऊपर भी चला जाएगा। मतलब होता है हाँ, इसका मतलब 17 रिसाइकिल का मतलब होता है 51 आईडी वो 0.025 में लगा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल कैलकुलेट सही कर रहे हैं, लेकिन उसमें सर टीम एफर्ट है। जो मेरे डायरेक्ट्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, उनका हर तीसरा व्यक्ति मुझे मिल रहा है, इसके कारण से ये 17 टाइम रिसाइकिल हुआ है। करेक्ट, 17 टाइम रिसाइकिल का मतलब ही होता है 51 यस सर, आईडीज वहां लग चुका है। यस सर, यस सर, ग्रेट टू हैव यू सर इन दिस। 25 बाकी 26 एक्स्ट्रा आ गया। ओह यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सतीश सोलंकी सर, आप अनम्यूटेड हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी आवाज नहीं आ रही साफ साफ, बताइए। सर नमस्कार, आवाज आ रही है? हाँ आ रही सर, बताइए। और सर सबसे पहले तो सर मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी मुझे सर 58 डेज हुए हैं आज मिला के, मतलब 58 दिन हुए हैं। 19 इथेरियम अर्न कर चुका हूँ, केवल सिस्टम जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, ना कि अपने मन से कोई भी कुछ नहीं। जो सिस्टम कह रहा है जस्ट मैं फॉलो करता गया और अपनी टीम को वही फॉलो कराता जाऊंगा। और आप जैसे मेरे ग्रेट अपलाइन है, तो सर आपकी ही मतलब गाइडलाइन पे चलकर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सर, ऐसा कुछ नहीं है। गाइडलाइन तो सर सबके साथ मेरी सेम ही है, पर उसको लोग कितना ले रहे हैं और लोग कैसे समझ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपनी सक्सेस कैसे निर्धारित करेंगे। सर मैं आपको जैसा मैं बताता हूं, अगर आप उसको थोड़ा सा भी फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं आप इसमें लॉन्ग टर्म तक बहुत सारा कमा पाएंगे सर। तो इसी के साथ सर थैंक यू आपका सतीश सोलंकी जी। थैंक यू सर। मिस्टर उस्मान अली सर, आप अनम्यूटेड हैं। उस्मान अली सर, आप अनम्यूटेड हैं। विकास सर, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो, वेलकम सर, बताइए। हेलो, हाँ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सेज। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि सर आपने जो प्रेजेंटेशन दिया सर वास्तव में बहुत लाजवाब रहा, और आपने इतने शानदार तरीके से लोगों को समझाया, जहाँ तक सभी लोगों को 99% समझ में आ जाना चाहिए। तो सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं MP ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, और इस प्रोजेक्ट को मैंने 6 जून 2020 को ज्वाइन किया था। आज लगभग 45 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, और मेरी इथेरियम में बात करना तो 23 इथेरियम मैं यहाँ से अर्न कर चुका हूँ सर। और मैं पूछना चाहूँगा विकास सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये 23 इथेरियम के लिए आप घर से कितने दिन बाहर निकले, कितने लोगों को चाय पानी नाश्ता कराया, और आपने क्या क्या किया? सर मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने घर से एक कदम बाहर नहीं रखा है। जो भी किया है मैंने घर से ही किया है।
घर से ही सब लोगों को कॉल किया है और जूम मीटिंग में बुलाया है। और मैं बात करूं मेरे घर से कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं तो आपको बताना चाहता हूं, आज आधी इंडिया में लगभग उड़ीसा, हैदराबाद, दिल्ली, नोएडा, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, राजस्थान, जहाँ तक सर सऊदी अरब में भी मेरी टीम बनी हुई है। और मेरा उसके अलावा दुबई में भी काम चालू कर दिया है सर मैंने। क्या बात है, क्या बात है सर। जबकि मैंने एक कदम सर घर से बाहर नहीं रखा है। सब सर आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और हम भी जो काम कर रहे हैं सर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। तो हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हुए स्मार्ट तरीके से काम करना है, क्योंकि हार्ड तरीके से तो हर कोई कर सकता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और उसको समझ पाते हैं। तो मैं सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो जितने भी नए लोग हैं, कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने अभी मिस कर दिया वो लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर सकता है। इसलिए सबसे पहले आप इसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद में इसको समझें कि करना कैसे है, अपने सीनियर से, अपनी अपलाइन से। क्योंकि मैंने भी इसको पहले ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के 3 दिन बाद सर को कॉल किया था कि सर आप करना कैसे है ये बताइए। तो जब से मैंने लगभग 45 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और डेली की मेरी इनकम यहाँ से आधा इथेरियम लगभग 10 से 12 हजार रुपये डेली अर्निंग हो रही है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज मेरी टीम से भी ऐसे लोग हैं जो 20 से 20-30 इथेरियम तक कमा चुके हैं, 10-10 12-12 इथेरियम कमा चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, है ना। थैंक यू सर। और मैं आप लोगों को सर एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि इथेरियम फिर से बढ़कर 275 USD का हो चुका है। तो मैं आप लोगों से कह रहा था, विकास सर पहले से मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैंने बहुत पहले ही कहा था, जैसे इथेरियम 2.0 की न्यूज़ आएगी, इसकी न्यूज़ आएगी कि लॉन्च होगा तो इथेरियम भगने लगेगा। आपके पास जुलाई तक का टाइम है। अब देखिए, अभी सुबह तक 263 था। आप अपना ट्रस्ट वॉलेट खोल के चेक कर लीजिए कि इथेरियम का क्या रेट हो चुका है। अगर आज आप लेट हो जाएंगे तो सर फिर कभी आप पकड़ नहीं पाओगे इथेरियम को। मैं रियल बता रहा हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं अपना ट्रस्ट वॉलेट अभी खोल के। मिस्टर सिद्दीकी सर आप अनम्यूटेड हैं। मिस्टर सिद्दीकी सर, राजू टेले सर आप अनम्यूटेड हैं सर। डॉक्टर RK सिंह सर आप अनम्यूटेड हैं। डॉक्टर RK सिंह, हाँ सर बोलिए, आप फिर से अनम्यूट हो गए। डॉक्टर RK सिंह सर। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही, आपकी पूरी मीटिंग खराब हो गई है आज की। सर सभी को आ रही सर, आपको नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम हो रहा होगा। बिल्कुल सर, बहुत कम ऐसी मेरी आवाज आ रही है। लगभग 15 मिनट ठीक आ रही थी, उसके बाद बिल्कुल आवाज सर वो नेटवर्क के कारण होगा। अगर आपको सेम मीटिंग देखना है तो आप YouTube चैनल पे जाके चेक कर लेना सर, कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर से सुन सकते हैं रिपीट। YouTube पे क्या लिखना होगा सर? YouTube पे मैंने लिंक भेजी ना सर चैनल ही। मेरे चैनल का नाम है वी डू सिंपल। मैं आपको फिर से भेज दे रहा हूँ, आपको चैट बॉक्स आप चेक कर लीजिए, इस नाम से है वी डू सिंपल। ठीक है सर, ठीक है। मीटिंग बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी आपकी। नहीं सर, वो नेटवर्क के कारण होता है कभी कभी। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। सतीश जी नहीं रहेगा आज बाकी, आप अनम्यूटेड हैं। बोलिए सतीश जी। हेलो। यस सर। गुड इवनिंग एंड ऑसम एनर्जेटिक प्रेजेंटेशन सर। एक अनपढ़ भी समझ सकता है ऐसी प्रेजेंटेशन है आपकी। हम सब की दुआ है कि आप इंटरनेशनल प्रेजेंटर बने। थैंक यू वेरी मच सर। और सर आप लोग चाहोगे तो मैं बन जाऊंगा। यस सर। और मुझे ये क्यूरी है सर कि अभी मान लीजिए कि मैंने ऊपर वाला एक स्लॉट बाय किया X3 का,
और X4 में 3 बाय किए, ऐसा सपोज लीजिए, और मैंने अभी एक आदमी को डायरेक्ट जोड़ दिया समझो, तो मुझे उसका कितना अर्निंग होगा पहले में? क्या बोला, फिर से बोलिए सर आप। समझ लीजिए मैंने X3 में 1 स्लॉट बाय किया है, ओके, और X4 में 3 स्लॉट बाय करके रखे, ठीक है, तो मुझे कितना अर्निंग होगा मैं जब एक पहला आदमी जोड़ूंगा? सर जब आप फर्स्ट जोड़ लेंगे तो आपको केवल 1 स्लॉट पे ही आएगा, तो X3 से आपको इनकम आएगा 6, आज की डेट में मान के चलिए $8, और आपको $7 या $8 के आसपास आएगा, और नीचे से आपका इनकम X4 से आपकी अपलाइन को चला जाएगा। ओके, और जब मैं खुद तो सेकंड वाला स्लॉट मैं बाय करता हूँ जो कि 0.05 का है, तो वो उसका पैसा किसको जाएगा? वो आपकी अपलाइन को जाएगा। ओके, वैसा ही मेरा डाउनलाइन में जितना सर बिल्कुल सर सेम है, सेम ऐसा नहीं है कि किसी के X4 के अंदर, लेकिन क्या होता है सर कि हर बोर्ड पर आपका अपलाइन चेंज हो सकता है, लेकिन X3 में आपका अपलाइन कभी चेंज नहीं होता। ठीक है सर। ओके 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 ओके। और सर एक मिनट, ये जो है जबकि मैं भी X3 में पहले स्लॉट पे हूँ, और मैंने जिसको ज्वाइन किया है तो वो भी पहले स्लॉट पे रहेगा, तो वो टाइम पे मतलब X3 में मेरा सेकंड स्लॉट उसके पहले बाय चाहिए ना? हाँ सर, अगर आप किसी भी स्लॉट का आप अपने नीचे डाउनलाइट से पे आउट लेना चाहते हैं तो आपका पहला वो स्लॉट एक्टिवेट होना चाहिए। X3 और X4 दोनों में ये लागू होता है सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सतीश सर। संदीप जी आप अनम्यूटेड हैं। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि मेरे 2 आईडी है, ए और नीचे बी, एक के नीचे एक है, तो ए वाला मुझे अभी ये 3 चीजें पूछनी है कि मुझे अगर नए लोग ज्वाइन करने हैं तो किस तरह से ए को ज्वाइन करूं क्या बी को? और दूसरी बात पहले ये तो है मैं कि ये आपसे पूछना चाहूंगा, आपको किसने ये सलाह दी थी कि आप एक के नीचे एक लगा के 2 आईडी काम करिए सर? नहीं, जो अभी यानी उस वक्त क्या है ना, पता नहीं था, तो मैंने बोला मेरे वाइफ का एक डाल देता हूँ, तो वो सर एक्चुअली क्या, देखिए मैं आपसे ये कहूंगा किसी भी एक आईडी पे कॉन्सेंट्रेट करें, आप बेसिकली ए वाले पे करें और आप वहीं पे काम करें, और उन्हीं के सर यहाँ पे देखिए स्लॉट्स एक्टिवेशन का मामला है, ना कि आप 2 आईडी। देखिए सपोज करो आपने 2 आईडी ले भी ली है, सपोज करो आपने बी के नीचे किसी को लगाया, तो X4 में वो कहाँ लगेगा? नंबर 1 पोजीशन पे। यहाँ देखिए स्क्रीन पे आप अपनी यहाँ पे लगा, तो ये बाउंस होकर कहाँ गया? आपके ऊपर वाले अगेन X4 पे आपके इसी पोजीशन पे गया। ठीक है, राइट। तो फिर से किसके पास चला गया? अपलाइन के पास गया। मेरे कहने का मतलब है आप इधर पे अपलाइन का पे आउट 10 आईडी लगा के भी नहीं रोक सकते, जाएगा तो जाना ही है। ठीक है, इसलिए क्या करिए, अब आप लगा लिया कोई बात नहीं, एक ही स्लॉट खरीदा है ना सर, ज्यादा तो नहीं खरीदे ना? एक ही खरीदा। हाँ, तो आप अपने ए आईडी पे कॉन्सेंट्रेट करें, उसके मैक्सिमम X3 और X4 के स्लॉट्स एक्टिवेशन करने की कोशिश करें। आप यहां से आप काम कर सकते हैं, आपको जरूर आप ये कर सकते हैं, अपनी बी के नीचे आप इनको डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्लॉट एक्टिवेट रहेगा नहीं, तो अल्टीमेटली पेमेंट आपको आना है। लेकिन अगर आप ऐसा ना करें, ए पे ही लगाएं तो ही बेहतर होगा, एक आईडी पे ही काम करें, उसको डले रहने दें सर, सिंपल सी बात है, भूल जाएं उसको। ओके, यानी मुझे ए पे ही पूरा फोकस करना है। डेफिनेटली सर। और मुझे सजेशन मिला था कि अगर नेक्स्ट आईडी लेना हो तो मुझे ए के साइड में ही, यानी दूसरा अपलाइन के साथ कनेक्ट करके दूसरा एक लेना है। तो बोल रहा हूँ सर, एक्चुअली देखिए ये ऊपर वाले नोड के पास ये आपकी अपलाइन हो गई, ये आपकी आईडी हो गई, और ये बी, तो डेफिनेटली आपके अपलाइन के पास आईडी ये वाला नोड है ना सर, तो पेमेंट सबसे ज्यादा अप्रोच यहीं पे होगा, ना कि यहाँ पे होगा, क्योंकि बीच में आप बैठे हुए, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको ए पे काम करना है। राइट। और अगर बाद में जब स्लॉट सब हो गए तो मुझे अगर दूसरा लेना है तो फिर मैं कहाँ पे लेना? बात की बात है सर, वो तो फिर आपके पास सेकेंड आईडी है ना नीचे, आप उसको काम उसमें दोबारा चालू कर दीजिए, मतलब आपका 12 स्लॉट्स हो गए तो आप नीचे ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे क्यों? आप अपना कमा के पैसा फिर से लगाएंगे और फिर से आधा हो जाएगा, तो क्या मतलब? इससे अच्छा एक ही नंबर पे आईडी पे पेमेंट आने दीजिए ना सर। हाँ, राइट, यस। ठीक है सर, थैंक यू।
ओके सर, थैंक यू सर। मिस्टर शिबू सर, आप अनम्यूटेड हैं सर। शिबू देबा रामा सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते सर, आपकी आवाज मध्य आ रही सर, थोड़ा तेज बोलेंगे। सुन पा रहे हो सर? हाँ बोलिए सर। हेलो सर। सर आई एम फ्रॉम त्रिपुरा, ओके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके ओके, वेलकम सर। सर मैंने ज्वाइन किया है, सिर्फ 2 दिन हुआ है और आज ही मैं मेरे एक डायरेक्ट को ज्वाइन करवाया है। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं अभी एडवांस में स्लॉट खरीदना पड़ेगा सर मुझे? खरीदना पड़ेगा ना सर। आप चाहते हैं आपके नीचे वाले डाउनलाइन स्लॉट्स खरीदें, तो डेफिनेटली आप चाहते हैं कि अगर आपको नीचे से पे आउट आए आगे वाले स्लॉट्स पे, तो आपको पहले अपने स्लॉट्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे सर। इट इज कंपलसरी। ओह अच्छा सर, इसका मतलब है कि मेरा जो डायरेक्ट लाइन डाउनलाइन है उसने स्लॉट खरीद लिया तो मुझे भी खरीदना होगा, ऐसा है सर? सर जब वो खरीदेगा नहीं सर, उससे पहले, अगर आपसे पहले उसने खरीद दिया तो आपको लॉस हो जाएगा। ओह अच्छा, ठीक है सर, यही डाउट था मेरा। और तो सर मैं डेली तो आपका मीटिंग में अटेंड करता हूँ और सुनता हूँ, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर काइंड अप्रिशिएशन सर, थैंक यू वेरी मच सर। राजू सर, आप अनम्यूटेड हैं। राजू सर। प्रफुल्ल पाटीदार जी, आप अनम्यूटेड। हेलो। हाँ सर, बोलिए राजू। हेलो सर। बोलिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, 2-3 बार तो मैं सुन चुका हूँ। अगर मेरा एक प्रॉब्लम है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं एक चीज के लिए, तो शॉर्ट में पूछ लेता हूँ। समझो सर मेरा आईडी है, उसके नीचे एक आईडी लगा है, ठीक है, तो उसका एक डाउनलाइन उन्होंने बना लिया। तो X4 में जो है, X4 में फर्स्ट और सेकंड जो है वो अपलाइन को जाता है, बराबर? अभी अपलाइन को जाता है, तो वो अपलाइन रैंडमली ऊपर किधर जाता है क्या, उसके जस्ट इमीडिएट अपलाइन को जाता है? नहीं सर, रैंडमली चेंज हो सकता है आपका। हर सर्कल पे, हर बोर्ड पे, हर सर्कल पे, मतलब हर साइकिल पे आपका अलग अलग अपलाइन हो सकता है X4 में सर। एक्चुअली इस प्लान की खूबसूरती वही है, तभी तो सर पेमेंट अलग अलग लोगों को जाता है। आपको इसी स्पेल भी इसी माध्यम से आता है ना सर? हाँ, क्योंकि मैं जितने भी डाल रहा हूँ ना सर, वो फर्स्ट और सेकंड है ना, मतलब वो अपने जो ग्रुप है उसमें नहीं लग के और किसी को लग रहे हैं, तो मैं सोचा अपलाइन को जाता होगा। नहीं सर, वो आप इमीडिएट आपकी क्रॉस लाइन में जाता है पहले पैसा। अच्छा, क्रॉस लाइन में जाता है और या ऊपर जाता है? यस सर। अच्छा, यही डाउट था सर, क्योंकि वो देख रहा हूँ मैं तो अलग ही जगह पे दिखा रहे, तो नहीं सर, अच्छे के लिए, आपकी अच्छाई के लिए। नहीं, एक्चुअली आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना अपलाइन करके, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इमीडिएट अपलाइन है क्या और कोई है। नहीं सर, मैंने बताया था ना सर, जब मैं प्लान समझा रहा था X4 में, मैंने आपको बताया ना कि X4 में हर बोर्ड पे अपलाइन चेंज हो सकती है सर। अच्छा, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रफुल्ल सर, आप अनम्यूटेड हैं, वेलकम सर। जी सर, नमस्कार सर। मैं ये पूछा था, कुछ नेटवर्क इशू चलते मैं अभी मीटिंग ले नहीं पाया था, अभी एंटर जस्ट हुआ हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जो नेटवर्क फीस अभी ज्यादा चल रही है सर 2 दिनों से, मतलब ये समझो कि सर देखिए उसके 2 रीजन है। पहली बात तो मैं बता दूं, सब लोग सुन लीजिए। पहला रीजन ये है कि इथेरियम 2.0 वर्जन रिवाइज हो रहा है आपके इथेरियम ब्लॉकचेन पे, तो हर समय आईडी नहीं लग पा रही है। कभी आप देखेंगे पंची नहीं हो रही आईडी, आप एनरोल ही नहीं कर पा रहे हैं। इट इज ड्यू टू द नेटवर्क कंजेशन और अपडेशन। तो जब खुल रहा है तो एकदम से लोग आईडी लगा रहे हैं, तो ज्यादा लगने के कारण आपको नेटवर्क फीस आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो अमाउंट का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, क्योंकि अभी अभी बढ़ के $275 हो गया, और मैं आपको बता रहा हूं रोज कम से कम $10-12 आपका इथेरियम इंक्रीज करेगा। तो ये आपका स्टेबल नहीं रहने वाला है, डेफिनेटली आपको बढ़ के ही लगेगा। और जो नेटवर्क फीस वाला इशू आ रहा है, जैसे ही इथेरियम 2.0 रिवाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये इशू इथेरियम ब्लॉकचेन से ही सॉल्व होने वाला है। इसकी एक रिपोर्ट मैंने आप सभी लोगों को कल भेजी हुई थी, जितने लोग मेरे सोशल मीडिया ग्रुप से एसोसिएटेड हैं।
हेलो सर, तो इसमें सर अभी वेट करवाएं लोगों को थोड़ा? नहीं सर, आप ज्वाइनिंग करवाइए, लेकिन जैसे रात को 12:30 बजे के बाद से लेके सुबह 6-7 बजे तक लगाएंगे तो आपकी मिनिमम में लग जाएगी। मतलब अगर हाँ बोलिए। रात की 12 बजे के बाद भी सर चेक करा था और सुबह 5 बजे से 9-10 बजे तक भी चेक करा सर, लेकिन कम हुआ नहीं था सर। वो किसी को ज्यादा आ रही, लेकिन जैसे अगर आज की बात करूं तो मैंने 2 आईडी मैंने भी लगाई थी आज, तो लगभग $18-19 में लग गई थी सर। सुबह की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और 6 o'clock की बता रहा हूँ। ओके सर, ट्राई करते रहेंगे। हाँ वो तो सर अभी कोई ऑप्शन नहीं है सर, अभी केवल ट्राई वाला सिस्टम है। अच्छा 2.0 कब तक हो रहा है सर ये? सर 4 तारीख अभी मैंने आपको भेजी ना, आप अपने चैट बॉक्स पे देखिए रिपोर्ट एक, और मेरे आप तो ग्रुप में ऐड हो सर, तब भी आप पूछते हो सर। बताओ कैसा करते हो यार प्रफुल्ल सर यार। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। नितिन सर आप अनम्यूटेड हैं। मैं ये बोल रहा था कि जो नेटवर्क फीस दिखाता है, जैसे दिखाता है वो मैक्सिमम $10, बट आप सक्सेस करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो $10 कटे। हाँ $6 या $4 ही है। तो सर ये भी पॉसिबिलिटी है जो सर कह रहे हैं, ऐसा हो रहा है इस समय, और ये डेफिनेटली ड्यू टू अपडेशन के कारण ही हो रहा है। तो आप अगर रिस्क लेके काम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करके देख सकते हैं सर। थैंक यू सर नितिन सर, और मैं चाहूंगा कि आप मीटिंग यहीं पे आप खत्म करें आज, और इसके बाद आप लास्ट हैं, और डेफिनेटली मैं मीटिंग एंड करना चाहूंगा। मैं सबसे बताना चाहूंगा जो सच्चाई वाली बात है, जो प्रमोद भाई ने बताया 0.2 फर्स्ट रीजन पहला ये है। दूसरा रीजन ये है कि वहां पर मैक्सिमम दिखाता है और मीडियम लेके जाता है, मतलब $10 भी दिखाएगा फीस, $12 भी दिखाएगा, $18 भी दिखाएगा, और फीस जो है $4, $6, $7 के आसपास ही लगती है। तीसरा रीजन ये है कि जो 0. फर्स्ट टाइम हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें ही मैक्सिमम लगता है, अगर अपग्रेड करेंगे तो वहां पर उतनी फीस नहीं लगती। चौथा रीजन ये है कि जो फोर्सेज के बहुत सारे बाप आ गए हैं, तो उन कंपनियों में भी, उन प्रोजेक्ट में भी किसी में 200 आईडी लगती है, किसी में 400 लगती है, किसी में 500 लगती है, किसी में 1000 लगती है, तो उसकी वजह से भी डिमांड एंड सप्लाई के अंदर ये फीस लगती है। मेरा यही कहना था। थैंक यू सर। एक कैंडिडेट और हैं सर, वो कहते हैं कि मैं उनको अनम्यूट नहीं करता हूं, तो डेफिनेटली शेखर भट्ट सर आप अनम्यूटेड हैं। वेलकम सर। शेखर भट्ट सर आप अनम्यूटेड हैं। हाँ मौर्य जी नमस्ते, धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन चलता है। और जहाँ तक मैं जब ज्वाइन हुआ था तो मेरा सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मुझे पहले दिन ही चांस मिल गया था, नितिन सर ने चांस दिया। नितिन सर नमस्कार आपको। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ नितिन सर, जब मैं ज्वाइन हुआ था तो सबसे पहले मेरा आपसे ही हुआ था इंटरेक्शन, और तब मैं टोटली नया था। जी सर। जी मैं नागपुर वाले डेटे सर के ग्रुप से हूँ सर। जी सर, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जी सर। नहीं सर, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है प्रमोद सर जिस तरह से समझाते हैं लोगों को। मेरे अभी तो कुछ क्वेश्चन नहीं। सर आप जब हैंड राइज करेंगे तो आपको जरूर खोलेंगे, आप सबसे पहले हैंड राइज कर दिया करिए। नहीं सर, इसके पहले क्या होता था, चांस नहीं मिलता था, और फिर बाद में मेरे तरफ से भी थोड़ा मैंने एसबी डाला था, उसके वजह से भी आपने एक बार डांट पिलाई थी कि भाई जिनका शॉर्ट नेम है उनका अनम्यूट नहीं करना है। तो मैं बाद में उसमें क्या होता है सर, देखिए आप खुद एक मतलब सिस्टमेटिक व्यक्ति हैं, तो अगर खाली एस बोले, ए बोले, तो सर ये क्या होता है कि मतलब एक सारे लोग हमें वॉच कर रहे होते हैं। मैं आपको नहीं देख पा रहा, आप मेरे को नहीं देख पा रहे, पर यहाँ पर जो 170 लोग हैं वो पूरे प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। बहुत सारे अमिताभ बच्चन है, बहुत सारे रजनीकांत हैं, वो हमारी हर एक चीज को वो वॉच कर रहे होते हैं कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे किस तरह के लोग आते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा वो बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं मान लो कि मैं एन लिख दूं और उसके आगे लिख दूं कुछ और लिख दूं, तो सर वो क्या है कि मतलब जो मतलब एक सिस्टमैटिक नहीं लगता। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है सर। ठीक है, तो थैंक यू सर। जी सर। जी सर, जी सर, जी सर, मौर्य सर। हाँ जी सर, बोलिए। जी सर, नितिन सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जो भी है वो कल फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। टाइम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी लोगों से अब विदा लेना चाहूँगा। सभी लोग का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और कल हम फिर से मिलेंगे, इसी टाइम मिलेंगे। अभी दोपहर 3 बजे की मीटिंग 2 दिन के लिए पोस्टपोन्ड है, मेरे कुछ पर्सनल काम होने के कारण। तो डेफिनेटली हम वो सैटरडे से मीटिंग चालू करेंगे, वेट फॉर इट। और इसी के साथ मैं अपनी मीटिंग ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मीटिंग में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।